Get ready. Good afternoon. So, yet another session. Chapter number 9, biomolecules, biomicromolecules. There are few centers which are not yet joined. Godhra, Monarch, Junagadh, Nadiyad, Surat, Daboli. Please turn your cameras on. Fine. So, one by one, I will be asking few questions so that તમને એમ ન થાય કે અહીંયા હું હાલે છે. Right? Okay. Mehsana Center. Which kind of 2 sugar? Which kind of 2 sugar we have studied earlier? ચાલો બે sugars જે આપણે સ્ટડી કરી છે. સર યસ સર. ગુજરાતી મીડિયમનો લેક્ચર છે કે ઇંગ્લિશ? ગુજરાતી નહીં, ઇંગ્લિશ. ઓકે. ગઈકાલે તમે એવું કીધું કે ગુજરાતીના બે લેક્ચર લેવાશે. આ એ ભૂલ થઈ ગઈ બાપા મારી, ભૂલ થઈ ગઈ. સારું. ઇટ ઇઝ ઓકે, ઇટ ઇઝ ઓકે. ગુજરાતી નથી, ગુજરાતી મીડિયમનો ક્લાસ હોય તો પ્લીઝ લોગ ઓફ થઈ જાજો. ઇટ ઇઝ ઇંગ્લિશ મીડિયમ લેક્ચર. ઇટ ઇઝ ઇંગ્લિશ મીડિયમ લેક્ચર. ટાઈમ ટેબલ ચેન્જ થવાનું હતું, થયેલું નથી. સો વી વિલ કેરી ફોરવર્ડ અવર ઓન શેડ્યુલ. ઓલ્ડ શેડ્યુલ જે હતું એ જ ચાલુ રહેશે. ઇંગ્લિશ મીડિયમનો લેક્ચર હશે આ. Again, Mehsana Center, which are the 2 sugars we have studied? I am asking the question. Glucose and ribose. Good. Glucose and ribose. Right? Okay. Junagadh Center. Nitrogen base. Nucleotide. Did we finish it or ये 4 કરવાનું છે બાકી? We discussed basic about that. Yes, we have already discussed basic about it. So what I said is આપણે કયા કયા nitrogen base એની વાત કરી છે. That's what my question. Okay, Gyanveli. Which are the basic nitrogen base we have discussed earlier? Gyanveli. સેજ જોરથી બોલી શકશો? મારા સુધી અવાજ, તમારો વોઇસ નથી પહોંચતો. Sir, may I? Yes, please. Purine, pyrimidine. Okay, purine and pyrimidine. Good. What is the basic difference between purine and pyrimidine? કોને આવડે છે? હેન્ડ રેઝ કરો. Basic difference between purine and pyrimidine. Yes. सर प्यूरिन में डबल बॉन्ड होता है, वो होता है थायमिन और वो, और उसमें अलग होते हैं. Double bond नहीं, double circle. If it is double cyclic structure, as it is given here, 2 cycles, they are adenine. And if it is single cycle, right, circular, it is not circular, but it is cyclic structure. Single cyclic, it is uracil, that is pyrimidine, and double cyclic structure, what they have given is adenine, that is purine. So purine with 2 cyclic structure and pyrimidine with single cyclic structure, right? Okay, last question for you is
total 5 nucleotides, 5 types of nucleotides, right, are seen, which includes 5 nitrogen bases. Those 5 nitrogen bases are adenine, guanine, cytosine, thymine and uracil. There are the 5 nitrogen bases what we have studied earlier. So DNA માં બી 4 જ હોય, RNA માં પણ 4 જ nucleotides હોય, right? So what is the difference between the nucleosides of DNA and nucleotides of RNA? Let me ask you a question. The difference of nucleotides in DNA versus RNA. DNA and RNA માં nucleotides માં શું differences હોય? Who knows the answer? Okay, Himmatnagar Center. Sir, may I? Please. May I કીધું ઈ કોણ હતું? જલ્દી કયો. Deoxyribonucleic acid and RNA ribonucleic acid. ઓકે. હવે આમાંથી યાદ કેમ નથી બધાયને? Why don't you remember these things? બધાયનો હાથ ઉપર કેમ નથી થતો? This everything has to be memorized, has to be remembered perfectly, point to point. દરરોજનું કામ દરરોજ થવું જ જોઈએ. Understood? Right? So let me remind you once again. DNA વાળો portion હું આખે આખો ફરીથી લઈ લઉં છું. Once again I am repeating. Right? Okay. Let me start again with nucleotide. The molecule of nucleotide. એમાં 3 component છે. એક છે nitrogen base, એક છે pentose sugar, and the other component is phosphate. These are the 3 components what one nucleotide is composed of. Pentose sugar we already have discussed. Phosphate also we have already discussed in lipid, phospholipids. Baki vaidu kon nitrogen base. That's the reason why only nitrogen base is given as an explanation of nucleotide instead of everything. Right? ખાલી nucleotide એમાં nitrogen base જ આપ્યું છે એનું reason આ છે. Because rest of the molecules we already have discussed earlier. That's why. Okay. So there are basically 2 categories or 2 groups of nitrogen base. One is purine, one is pyrimidine. Purine double cyclic ring and pyrimidine single cyclic ring. Adenine and guanine are 2 purines and cytosine, thymine and uracil are 3 examples of pyrimidine. Understood now? Okay. This is revision, so I am going a bit fast. Okay. First set of reaction is happening between pentose sugar and nitrogen base. I repeat, first set of reaction which is occurring in nitrogen base and pentose sugar. Pentose sugar is remaining in the center of nucleotide. Nucleotide na structure na center ma pentose sugar hoy. Right? So pentose sugar na right hand side upor nitrogen base attach થાય. આ pentose sugar છે, say for example અહીંયા say for example this is the pentose sugar. તો pentose sugar ના right hand side na end માં આ adenine nitrogen base છે, nitrogen base joint થાય. Understood? So when pentose sugar is attached to the nitrogen base, this structure which is formed
it is called nucleoside. It is called nucleoside. So nitrogen base plus sugar gives you the structure of nucleoside. Do remember these. There are 5 categories of nitrogen base. Right? Nitrogen base 5 છે. So you can have 5 different kind of nucleosides. 5 different kinds of nucleosides you can form. If adenine is attached with the sugar, you can have adenosine as nucleoside. So this is the first one. If guanine is attaching to the sugar, you can have second number of nucleoside called guanosine. If cytosine is attaching to the sugar, you can have third number of nucleoside called cytidine. If thymine and uracil successively joining to the sugar, you can have number 4 thymidine, number 5 uridine. So these are the 4 different types of nucleosides what you can see in living system. હવે ઘટે છે ફોસ્ફેટ. So nitrogen base plus sugar plus phosphate થાય એને કહેવાય nucleoside. So you are attaching the third component called phosphate. આ તો થઈ ગયું તું. Adenine plus sugar તો already was there. Now you are adding one more molecule of phosphate to it. So first one, the nucleotide what you are getting by adenine, it is called adenylic acid. Okay. What is adenosine? Adenosine is the nucleoside. Adenosine nucleoside માં મેં એક ફોસ્ફેટ નાખ્યો તો it is adenosine monophosphate. Okay, adenosine nucleoside. A adenosine nucleoside ma, when you are adding one phosphate called monophosphate, right? So it is adenosine monophosphate. Okay, adenosine monophosphate ની વાત કરું તો મીનિંગ તમને સમજાય છે એડેનોસાઇન મોનોફોસ્ફેટ નો શું થાય? મીનિંગ સમજાય છે તમને એડેનોસાઇન મોનોફોસ્ફેટ નો શું સમજાય છે? એડેનોસાઇન મોલેક્યુલની અંદર એક ફોસ્ફેટ મેં એડ કર્યો એટલે કેમિકલી ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એડેનોસાઇન મોનોફોસ્ફેટ, પણ એનું નામ કોમન નેમ શું છે? જુઓ, એડેનિલિક એસિડ. નીટની અંદર આવા ક્વેશ્ચન આવશે. એડેનોસાઇન મોનોફોસ્ફેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એડેનિલિક એસિડ, બીજું નામ છે એનું. આ બેય નામ એના સાચા જ છે, ખોટા નથી. સો ગ્વાનોસાઇન મોનોફોસ્ફેટ કહું કે ગ્વાનિલિક એસિડ કહું, બે એક જ થાય. સાઇટિડિલ મોનોફોસ્ફેટ કહું કે સાઇટિડિલિક એસિડ કહું, બે એક જ થાય. રાઈટ? સો ડુ રિમેમ્બર ધીસ. આવા નામ કેમિકલ ના તમને નડે નહીં, એ કેરફુલી ધ્યાન રાખજો. અંડરસ્ટુડ? ઓકે. એડેનોસાઇન મોનોફોસ્ફેટ એટલા માટે મેં કન્સિડર કેરફુલી કરાયું તમને એડેનોસાઇન મોનોફોસ્ફેટમાં હજી એક ફોસ્ફેટ નાખી દો તો એડેનોસાઇન ડાઇફોસ્ફેટ થઈ, એડીપી. અને એની અંદર ત્રીજો ફોસ્ફેટ નાખી દો તો એટીપી બની જાય, એડેનોસાઇન ટ્રાઇફોસ્ફેટ, એટીપી બની જાય. ધીસ આર ધી અધર મોલિક્યુલ્સ, રાઈટ? ધીસ આર ધી અધર મોલિક્યુલ્સ જેનો તમારે યુઝ કરવાનો છે ઓલા એનર્જી મેટાબોલિઝમમાં. એટીપી ટુ એડીપી અને એડીપી ટુ એટીપી. યાદ આવ્યું? એનર્જી મેટાબોલિઝમ. આપણા બોડીની અંદર જે બી મેટાબોલિક એક્ટિવિટી થાય છે, પોઈન્ટ ટુ બી નોટેડ, તમારા બોડીની અંદર જે બી મેટાબોલિક એક્ટિવિટીઝ થાય છે, you requires to have some energy input. Metabolic energy must be recognized in the form of ATP. ATP સિવાય બીજી કોઈ ફોર્મેટની એનર્જી મેટાબોલિઝમમાં ચાલતી નથી. રાઈટ? We cannot have any other option than ATP. Gyanveli, yes. सर एक्चुअली आपने जो गुजराती में बोला ना मुझे समझ में नहीं आया, तो आप उसे हिंदी में एक्सप्लेन कर सकते हो? Why not? कौन से सेंटर से बात हो रही है मेरी?
अभी? ज्ञानी All right, no problem. I will try કે હું ગુજરાતીની બદલે હિન્દીમાં જ I will explain, right? So that will create easy, recognition for every students out of there. Fine. What I am saying is, there are some chemical nature and some chemical names, and there are few कॉमन नेम्स. कुछ नाम ऐसे होते हैं जो केमिकल नेचर से जुड़े होते हैं, उसको हम केमिकल नाम बोलते हैं, है ना, केमिकल नेम है वो. और देर आर फ्यू नेम्स विच आर कॉमन नेम्स विच आर यूजुअली हम बोलते हैं जिसको कॉमन लैंग्वेज में कि भाई ये है तो इसको ऐसे बोलते हैं, ये है तो उसको ऐसे बोलते हैं. हमने एक ऐसा नाम लिया था कार्बोहाइड्रेट्स, बट कार्बोहाइड्रेट्स का केमिकल एक नेम है विच इज पॉलीसैकेराइड. इट इज पॉलीसैकेराइड, राइट. सो वैसे ही ये जो है सब न्यूक्लियोटाइड्स, जिसको मैं बोलूंगा एडेनिलिक एसिड, तो इसका कॉमन नेम है. एडेनिलिक एसिड इज ए कॉमन नेम, बट उसका केमिकल नेम अगर मैं सोचूं तो क्या होगा? वो बना है एडेनोसाइन से. एडेनोसाइन से बना है, राइट. एडेनोसाइन के अंदर मैंने एक फॉस्फेट को ऐड किया है, सो मोनोफॉस्फेट. एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट इज अ केमिकल नेम ऑफ एडेनिलिक एसिड. रेडी? तो मैंने उसको हाईलाइट किया है, इंटेंशनली हाईलाइट किया है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल जिसको हम जानते हैं जिसका नाम है एटीपी, एक मॉलिक्यूल ऐसा है जिसको हम जानते हैं जिसका नाम है एटीपी. एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ योर सिस्टम. आपकी जो बॉडी की अंदरूनी सिस्टम है, इंटरनल जो सिस्टम है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी सेल्स है, सेल्स के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, सब मेटाबॉलिक एक्टिविटी में जो एनर्जी चाहिए हमको, वो एनर्जी ओनली इन द फॉर्म ऑफ एटीपी ही यूटिलाइज्ड होती है. एक्सेप्ट एटीपी, कभी भी कोई भी अदर फॉर्मेट ऑफ एटीपी कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड इन योर सिस्टम, इन योर मेटाबॉलिज्म. तो एटीपी है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनेगा एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट में से. एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट बनेगा एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट में से. और एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट ये रहा, ये आपके सामने है. ये जो है एडेनोसाइन, ये है फॉस्फेट और ये है उसका शुगर. तो ये मॉलिक्यूल जो यहाँ पे दिया है वो है आपका एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट. ये उसका नंबर 1 फॉस्फेट है. ऐसा दूसरा फॉस्फेट में इसके साथ अटैच कर दूंगा. ये एक फॉस्फेट है, ये दूसरा फॉस्फेट और ये तीसरा फॉस्फेट. तो ये हो गया आपका एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल, एटीपी मॉलिक्यूल, राइट. इसलिए मैंने उसको हाईलाइट करके वंस अगेन एक्सप्लेन किया उसको कि ये एटीपी है. एटीपी का अलग ही अपना जो नेचर है और एटीपी का अलग ही एक इंपॉर्टेंस है हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, राइट. तो देयर आर 5 न्यूक्लियोटाइड्स. अगर एडेनिन नाइट्रोजन बेस से बना है तो वो है एडेनिलिक एसिड. अगर नाइट्रोजन बेस ग्वानिन है तो वो है ग्वानिलिक एसिड. अगर नाइट्रोजन बेस साइटोसिन है तो वो है साइटिडिलिक एसिड. अगर नाइट्रोजन बेस थाइमिन है तो वो है थाइमिडिलिक एसिड. अगर नाइट्रोजन बेस यूरासिल है तो वो होगा यूरिडिलिक एसिड. आपके पास जो भी मटेरियल है, आपकी ये जो बुक है आपको जो मिली है, राइट, ये बुक के अंदर एवरी इंफॉर्मेशन इज गिवन. अगर नहीं गिवन है तो ये जो मेरी स्लाइड्स है उसका भी मैं एक वर्जन आपको सेंड करने वाला हूं एज सुन एज पॉसिबल. वो अभी अप्लाई हो रहा है एंड यू विल गेट एवरीथिंग, राइट. तो वो भी आपको मिल जाएगा फॉर द रेफरेंस. ओके, इफ यू ओपन योर बुक, हम लोग जहां पे है वो मैं साइट आपको दिखा देता हूं. पेज नंबर 53 आप खोलो, आपके बुक का पेज नंबर 53. एवरीवन जिसके पास बुक नहीं है वो आजू बाजू में देख सकते हैं. बात नहीं करना है, देखना है. यू जस्ट आर सपोज टू लुक योर बुक, क्योंकि काफी सारी टाइम ऐसा होगा आपको कि ये कहाँ से हो रहा है, सब कुछ कहाँ से रहा है, ये है ना. तो ओनली बेस्ड ऑन योर बुक एवरीथिंग इज मेंशन्ड ऑन योर स्क्रीन. ओके, पेज नंबर 53 है वो हमने ऑलरेडी फिनिश कर दिया है, राइट. ओके, मैं जा रहा हूं पेज नंबर 54 पे. पेज नंबर 54 ये भी हमारा खत्म हो चुका है. पेज नंबर 54 वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड, राइट. अब मैं हूं पेज नंबर 55 के ऊपर. पेज नंबर 55 के ऊपर हूं.
मिला आपको पेज नंबर 55? पेज नंबर 55 का लास्ट पॉइंट है न्यूक्लिक एसिड, राइट? वहां पे है हम अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो यही पॉइंट है, राइट? अंडरस्टूड? ओके, उसी की डायग्राम पेज नंबर 56 के ऊपर है। जितना आगे दिया है उस सब की डायग्राम्स यहाँ पे है। देखिए ये पेज 55 नंबर के पेज, 56 नंबर के पेज पे ये सब डायग्राम्स दी हुई है। तो 56 में न्यूक्लियोटाइड की जो डायग्राम, लास्ट डायग्राम दिख रही है आपको? लास्ट डायग्राम ये रही, देखिए यहाँ पे ये रही, ये सेम टू सेम है, ये ही डायग्राम है, ये डायग्राम है आपकी 56 नंबर के पेज की लास्ट डायग्राम। तो यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है वो सब पूरा आपकी बुक के बेस्ड है, राइट? एंड अकॉर्डिंग टू बुक की सीक्वेंस ही होगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सीक्वेंस चेंज हो जाएगी। मुझे जो लगेगा पहले समझाना है वो मैंने स्लाइड में पहले लिया होगा, शायद मुझे ऐसा लगेगा कि ये मैं बाद में कराऊंगा तो मैंने स्लाइड में शायद बाद में रखा होगा, राइट? बट आपके सामने जो भी डिस्कशन हो रही है इट इज बेस्ड ऑन योर बुक। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, मैंने पहले ही दिन बोला था, आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू कि आपका होमवर्क प्री डिसाइडेड है। 2 टाइप के होमवर्क है आपके। अगेन मैं रिमाइंड करवा दे रहा हूं आपको अभी कि यहाँ पे इसमें से से फॉर एग्जांपल न्यूक्लियोटाइड हुआ तो आपका ये एक पॉइंट खत्म हुआ न्यूक्लियोटाइड वाला। तो ये आपको रिटर्न में एक बार लिख के आपके टीचर्स को दिखाना है एज ए होमवर्क, राइट? और दूसरा, उसके पीछे एमसीक्यूज दिए हुए हैं। यहाँ पे जब चैप्टर खत्म होता है तो लिस्ट ऑफ एमसीक्यू होंगे पूरे। इफ यू ओपन पेज नंबर 79, चलो खोलो जब 79 पेज नंबर खोलिए, पेज नंबर 79 खुले। ओके, टॉपिक नंबर 9.1, टॉपिक नंबर 9.1, हाउ टू एनालाइज द केमिकल कंपोजिशन, ऐसा लिखा होगा। ये पूरा टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है कब का, राइट? तो एमसीक्यू नंबर 40 दैट इज पेज नंबर 82, पेज नंबर 82। तो वहां तक आपका वो टॉपिक ऑलरेडी खत्म हो चुका है, राइट? ओके, अब आ रहा है टॉपिक नंबर 9.2 एंड 9.3। 9.2 एंड 9.3 वही सेम पेज नंबर 82 पे। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो खत्म हो चुके हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो खत्म नहीं हुए हैं। सो जितने खत्म हो गए वो पॉइंट्स, वो एमसीक्यू का आपको सोल्व करना है एज ए पार्ट ऑफ योर होमवर्क। तो आगे की थियरी एंड पीछे के एमसीक्यू दोनों आपको सोल्व करने पड़ेंगे। जितना टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म होगा उसकी थियरी आपको 1 टाइम लिखनी है और एमसीक्यू आपको 1 टाइम सोल्व करने हैं। सो ये दोनों आपका कलेक्टिवली होमवर्क होगा रेगुलर का। हर रोज मैं आपको होमवर्क दूंगा नहीं कि आपका होमवर्क ये है। आपको समझ जाना है बाय योर ओन इंटेंशन, बाय योर ओन वेलफेयर। इट इज ऑटोमेटेड होमवर्क विच इज गिवन, राइट? So do that way and we will follow that process now onwards, because काफी सारे सेंटर्स में से मुझे ऐसी कंप्लेन आई थी कि कुछ पता नहीं चल रहा है। अब इसमें पता नहीं चले ऐसी कोई मैटर ही नहीं है। आप डॉक्टर बनने की बड़ी बड़ी ख्वाहिश रख के बैठे और इतना भी नहीं पता चलता कि मैं अगर बोलूं कि इतना करना है और आपको समझ में ना आए तो इट इज वेरी अनऑथेंटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ योरसेल्फ, राइट? यू आर सपोज्ड टू बिकम अ डॉक्टर और डॉक्टर की इतनी तो चलनी चाहिए, मुझे जहां तक पता चलता है तब तक, बराबर है? तो डू रिमेंबर दिस, आपको किस फॉर्मेट से जाना है और किस फॉर्मेट से आपको होमवर्क करना है। ओके, ये रही बात एक पॉइंट ऑफ व्यू की। सो अब मैं ऐसा करूंगा कि जहां जहां मैं शुरू करूंगा कोई भी नया पॉइंट, मैं आपको इंडिकेट कर दूंगा कि आपके बुक के पेज नंबर यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ताकि आपको पता चले कि भाई यहां से हम आगे बढ़ रहे हैं और ये पॉइंट को स्किप कर रहे हैं राइट नाउ और ये पॉइंट को हम आगे बढ़ा रहे हैं। सो आई विल कीप ऑन editing this information from your book. According to your book we will move down, right? So आपको कभी भी ऐसा ना लगे कि ये कहाँ से हो रहा है, कहाँ से आ रहा है और कहाँ से जा रहा है। So
पेज नंबर 55 पे है हम न्यूक्लिक एसिड के पॉइंट पे, बराबर है। अगेन वी आर कमिंग बैक टू अवर पॉइंट, ओरिजिनल पॉइंट 55 नंबर के पेज पे है लास्ट जो न्यूक्लिक एसिड का पॉइंट है, राइट। सो उसमें यहां पे आपको जो दिए गए हैं सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट और फोर्थ लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट और फोर्थ लास्ट पैराग्राफ, राइट, वो न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड के एग्जांपल दिए गए हैं। इफ यू सी, एडेनिलिक एसिड इज मेंशन्ड देयर, guanilic acid is mentioned there, cytidilic acid is mentioned there, thymidilic acid is mentioned there, and uridilic acid is also mentioned there. Ready? So that's where from I have got them. ये यहां से यहां पे कहां से आए हैं उसका सरनामा दे रहा हूं मैं, यहां से आए हैं। अंडरस्टूड नाउ? ओके, सो ये शायद पॉइंट को हम यहां पे एक लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कशन करने के बाद खत्म करते हैं, राइट। ओके, ये लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू का डिस्कशन ये है कि इफ आई सपोज अरेंज द न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स, सो मेरे पास जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर दो टाइप के मटेरियल है। मेरे पास है डीएनए एंड मेरे पास है प्रोटीन, राइट, डीएनए एंड प्रोटीन। बट डीएनए अलोन कैन नॉट वर्क, सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ मटेरियल, डीएनए एंड आरएनए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल बेसिकली, एक है डीएनए, एक है आरएनए। नाउ विथ दिस रेफरेंस डीएनए and RNA both are nucleic acids. DNA are very long polymer, whereas RNA is very short polymer. DNA is double stranded molecule, RNA is single stranded molecule. ये सब already you know it, 10th standard में ये सब कुछ आ चुका है जहां तक मुझे पता है। मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा हूं ये पॉइंट ऑफ व्यूज को, राइट। डीएनए इज वेरी लॉन्ग पॉलीमर एंड डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए इज वेरी शॉर्ट एंड इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड। ओके, अगर मैं बात करूं डीएनए की या मैं बात करूं आरएनए की, दोनों के अंदर न्यूक्लियोटाइड की जो वेराइटी होगी, वेराइटी ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर ऑलवेज 4। दोनों के पास 4 न्यूक्लियोटाइड्स है, दोनों के पास 4 न्यूक्लियोटाइड्स है, राइट। अगर ये 4 की बात करूं, सबसे पहला जो बना था न्यूक्लिक एसिड उसका नाम है आरएनए, नॉट डीएनए। आरएनए इज द फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड विच हैव बीन फॉर्म्ड ऑन द अर्थ। वो सबसे पुराना है, पहले डीएनए नहीं था, पहले आरएनए ही था, राइट। सो इट यूज्ड टू हैव प्यूरिन एंड pyrimidine. जो 2 प्यूरिन उसके पास थे उसका नाम है, एक का एडेनिन, दूसरे का नाम क्या है, किसी को याद है? दूसरे प्यूरिन का नाम है, भूल गए, इट इज ग्वानिन, राइट। pyrimidine जो 2 है, आरएनए के पास जो 2 pyrimidine है उसमें से एक का नाम है साइटोसिन, एक का नाम है साइटोसिन और एक का नाम है यूरासिल। माइंड इट, यूरासिल। तो ये मैं हाईलाइट करके रख रहा हूं यहां पे, यूरासिल। अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, द इंफॉर्मेशन व्हाट वी नीड टू रिमेंबर हियर इज, यहां पे सबसे पहला जब बना आरएनए तब आरएनए एक ही था, नाइट्रोजन बेस वाला न्यूक्लिक एसिड। ये जो यूरासिल वाला था वो एक ही था आरएनए, जिसके पास टोटल 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। देयर यूज्ड टू बी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 1, transmission of character from one generation to the other, that is heredity.
तो हेरिडिटी भी आरएनए ही करता था, और जो कैरेक्टर एक जनरेशन में से दूसरे जनरेशन में गए, फॉरवर्ड हुए, उसको एक्सप्रेस भी आरएनए ही करता था, एक्सप्रेस भी आरएनए ही करता था। ओके, ये चेंज जो है मैं क्यों आपको बता रहा हूं, लेट मी डिस्कस दैट फर्स्ट। ओके, यू नो दैट डीएनए produces RNA and RNA produce protein. Yes, sir. Yes, sir. पीरीमिडी पे थायमिन नहीं आएगा सर? आरएनए में नहीं होता है थायमिन, ओके। ये आरएनए है। मैं आरएनए का स्ट्रक्चर समझा रहा हूं, मैं थायमिन के पास जा रहा हूं अभी, वेट करिए प्लीज। आई एम गोइंग टू और टूवर्ड्स थायमिन, मैं थायमिन की तरफ आगे बढ़ रहा हूं अभी। गिव मी फ्यू सेकेंड्स, नॉट सेकेंड्स, फ्यू मिनट्स, राइट? ओके, डीएनए के ऊपर से जो आरएनए बन रहा है उसको मैं बोलता हूं ट्रांसक्रिप्शन, प्रोसेस को बोलता हूं ट्रांसक्रिप्शन। ये है ट्रांसलेशन, राइट? ये प्रोसेस का नाम है। ओके, डीएनए और आरएनए, ये दो मॉलिक्यूल में से अगर मैं बात करूं प्रोटीन बनता किस में से है, बाय लुकिंग इनटू द फ्लो चार्ट हियर यू कैन इजीली जज कि प्रोटीन बनता है आरएनए में से, डीएनए में से नहीं, राइट? डीएनए में से नहीं बन रहा है, वो किस में से बन रहा है? आरएनए में से। तो बेसिकली आरएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ये शुरू जब किया था तब से अभी आपके अंदर भी ऐसा ही है, राइट? आरएनए ही ऐसी चीज है जो एक्सप्रेशन देती है। एक्सप्रेशन मतलब जो भी कैरेक्टर हमें मिले हैं हमारी प्रीवियस जनरेशन में से, उसको एक्सप्रेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आरएनए की ही है, राइट? बट हम क्या है? एडवांस लेवल के, हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है। आई रिपीट, वी आर डेवलप्ड, वी आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म विच आर मल्टीसेल्यूलर, यूकैरियोटिक। बट उसके पहले प्रोकैरियोटिक सेल भी थे, प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया भी थे, और बैक्टीरिया में भी डीएनए आ गया है, आरएनए नहीं है। तो इसमें से किसी को पता है कि आरएनए कौन से टाइप के ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है? आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल कौन से टाइप के ऑर्गेनिज्म में होता है? कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म हो जिसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो, ऐसा किसी ने सुना है? ओनली आरएनए, और देयर इज नो डीएनए। ओके, सो आज से सभी याद रखेंगे, दे आर वायरस। अभी जो कोरोना आया था ना, वो कोरोना वायरस, तो उसके अंदर सिर्फ आरएनए होता है, देयर इज नो डीएनए इनटू देम, राइट? सो देयर आर मेनी वायरस जिसके अंदर जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट ओनली वायरस होता है, आरएनए होता है, देयर इज नो डीएनए टू देम। उसके पास डीएनए होता ही नहीं है, राइट? ओके, अब बात आती है डीएनए आया कब और कैसे, उसकी जरूरियात क्यों थी और कब वो एग्जिस्ट हुआ। ओके, नेक्स्ट लेवल में मैं जाता हूं कि जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, राइट, स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, तो सेल थोड़ा मजबूत होना उसको रिक्वायरमेंट थी, सेल को मजबूत होना था, सेल को प्रोकैरियोटिक सेल में कन्वर्ट होना है, सेल को और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए। सर आप एक बार फिर से टॉपिक रिपीट कर सकते हैं? कौन है वो? हाँ, ऐसे कर सकते हो आप? मुझे पता चले किसने बोला है। एस्पायर सूरत। ओके ओके, कहां से शुरू करूं? मींस कहां से आपको चाहिए कि मैं रिपीट करूं? लास्ट क्या पॉइंट ऐसा था कि जो आपको पता है, वहां से मैं स्टार्ट करूं?
आरएनए से करो, है आरएनए से करो। तो आपको अभी याद आया कि आरएनए से मुझे फिर से शुरू करना पड़ेगा ऐसा? अरे सर मतलब वो शॉर्ट में कर दोगे तो भी चलेगा, वो एक्सीडेंट तो सम्मत दे देंगे। कर दो एक बार। हाँ, लास्ट में जो अपने एग्जांपल के साथ कोरोना वाला से पूरा उधर से भी। ऑलराइट डन डन। हाँ बस दैट्स इट। ऐसा मुझे इंडिकेट कर दीजिए कि यहाँ से, बिकॉज आरएनए पूरा तो अभी शाम हो जाएगी बात। ओके, आरएनए सबसे प्रिमिटिव न्यूक्लिक एसिड है और वो आरएनए सिर्फ कुछ ही ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलता है, और वो भी एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है ही नहीं, वो वायरस है। वायरस इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से पहले का स्ट्रक्चर था। अंडरस्टूड नाउ? लिविंग ऑर्गेनिज्म के पहले का स्ट्रक्चर था वो, उसके अंदर आरएनए है, ओनली आरएनए, देयर इज नो डीएनए। अब उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होना है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बनना है तो उसको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। पॉइंट टू बी नोटेड। अगर स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स बनाना है तो उसको मेंटेन करना भी कॉम्प्लेक्स होता है। से फॉर एग्जांपल आप जो अभी पढ़ रहे हो ना, वो कॉम्प्लेक्स थियरी है, राइट? कॉम्प्लेक्स थियरी है तो क्या हुआ, या तो आपको लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम होगा, जैसे मैं अभी हिंदी में बात कर रहा हूं पर पहले तो गुजराती बोल रहा था ना, लेकिन few students are there who do not Gujarati, who are not Gujarati, don't understand the Gujarati, तो मुझे चेंज करनी पड़ेगी ना मेथोडोलॉजी। आई नीड टू चेंज माई सेल्फ, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप सबके पास, सबको हिंदी तो आती है, सो एवरीबडी विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग इट इन हिंदी, बट मे बी फ्यू स्टूडेंट मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई आई स्पीक इनटू द गुजराती, तो मुझे एडप्ट होना पड़ेगा ना। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आपको भी एडप्ट होना है, आप एडप्ट हो रहे हो। आपको अगर समझ में नहीं आती आप तुरंत बता देते हो, सर प्लीज रिपीट करिए ना इस वायरस को, फिर से यहां से रिपीट करिए सर। सो दैट इज द कॉम्प्लेक्सिटी यू आर ट्राइंग टू एडेप्ट विथ। पॉइंट समझिए, मैं जो समझाना चाहता हूं वो यही है कि हम एडजस्ट हो, बिकॉज वी आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग होने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी में घुसना पड़ता है। आई रिपीट, लिविंग होने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी में घुसना पड़ता है। उसको, वायरस को तो लिविंग होना है अभी। अब लिविंग होना है, कॉम्प्लेक्स होना है, तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए आरएनए जो है ना वो एडिक्वेट नहीं है, इनकेपेबल है, इनकेपेबल। आई रिपीट, इनकेपेबल है। रीजन क्या है पता है? इसका ये नबड़ा है, नबड़ा। ये यूरासिल है ना, इट इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग, वीक है यूरासिल। पॉइंट टू बी नोटेड, यूरासिल इज वीक, means it is not giving them a stable structure. I am repeating the word stable structure. एक जनरेशन में से दूसरे जनरेशन में उसको डालना है, एक सेल में से उसको दूसरे सेल में डालना है, तो उसको चाहिए स्टेबिलिटी, उसको चाहिए स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कैन नॉट बी फैसिलिटेटेड बाय यूरासिल। ये एक बहुत ही बड़ी चैलेंज है। तो उसने यूरासिल को बदल दिया। यूरासिल इज गेटिंग चेंज्ड, केमिकल चेंज हुआ। यूरासिल के अंदर एक एडिशनल ग्रुप आ गया, एडिशनल ग्रुप आ गया केमिकल का, तो यूरासिल इज टर्न्ड इनटू थायमीन। यूरासिल में से ही थायमीन हुआ, यूरासिल में से ही थायमीन हुआ। यस सर, थायमीन क्यों नहीं आता? सॉरी, yes, can you repeat it again? सर, आरएनए में थायमीन क्यों नहीं आता? आरएनए में थायमीन क्यों नहीं आता? वही क्वेश्चन है ना आपका? Yes. इट इज लाइक के वांद्रा के अंदर वो जड़बा होता है, स्ट्रेट क्यों नहीं होता है, ये ऐसा क्वेश्चन है। वांद्रे को पहचानते हो? यस सर। तो वांद्रे के अंदर जड़बा कैसा होता है? ऐसे आगे से फूलेला होता है, पता है ना, राइट? तो ह्यूमन बनते बनते वो सीधा स्ट्रेट हो गया। तो आपने जो वो थोबड़ा देखा वो स्ट्रेट देखा है, स्ट्रेट,
अब आप ये पूछते हो कि वो वांद्रे के अंदर ऐसा स्ट्रेट क्यों नहीं है, आप कंपेयर कर रहे हो, मैं किस चीज के बारे में बता रहा हूं? मैंने आपको ये समझाया है कि ये बेचारा वीक है, यूरासिल वीक है, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक जनरेशन में से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर को फॉरवर्ड करना है ना, हेरिटेंस, इनहेरिटेंस, स्टैंडर्ड 10 में आया था, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, राइट? तो इनहेरिटेंस की जो प्रोसेस है ना, उसमें एक सेल में से दूसरे सेल में या एक जनरेशन में दूसरे जनरेशन में जो फॉरवर्ड करना है कैरेक्टरिस्टिक फीचर को, वो होल्ड नहीं कर पाता है यूरासिल की उतनी ताकत नहीं है, क्योंकि वो स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है। यूरासिल की वजह से आरएनए स्टेबल नहीं है, राइट? तो उसने क्या किया, आरएनए ने यूरासिल को बदल दिया, यूरासिल था उसको बदल दिया, थोड़ा स्ट्रेट कर दिया, ह्यूमन बन गया। अब समझ में आ रहा है? अब डीएनए बना उसमें से, तो उसने आरएनए ने यूरासिल को रिप्लेस करके थाइमिन कर दिया। तो यहां पे अगर मैं आऊं तो डीएनए के पास 2 प्यूरिन है और 2 पिरिमिडिन है। इसके पास जो 2 प्यूरिन है, एक एडेनिन है, एक ग्वानिन है, पिरिमिडिन में 2, एक साइटोसिन है, और यूरासिल की जगह पे यहां पे आ गया है थाइमिन आ गया यहां पे। डू रिमेंबर दिस। तो थाइमिन आरएनए के पास इसलिए नहीं है कि आरएनए के पास वो था ही नहीं, वो कैरेक्टर ही नहीं है उसका, वो डीएनए का ही कैरेक्टर सुधर के आया, एडप्ट होके आया है, इसलिए आरएनए में नहीं है। अंडरस्टूड और नॉट? रेडी और नॉट? एवरीवन थम्स अप, ऑल राइट। सो दैट इज द एडप्टिव फीचर। अब एक चेंज ये है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड है, एक ही चेन है उसके पास, सिंगल चेन है। डीएनए की बात करो, डीएनए आप सबको पता है, इट इज डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल आपने देखा है। एम आई वेरी करेक्ट? यस और नो? थम्स अप। डबल स्ट्रैंडेड मटेरियल है डीएनए, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड मटेरियल है। डीएनए वेरी लॉन्ग पॉलीमर, मैं यहां पे लिख रहा हूं, वेरी लॉन्ग पॉलीमर, और उससे उल्टा ये वेरी शॉर्ट, it is very short molecule. RNA is very short molecule, DNA is very long polymer. Do remember these differences between these two. आपकी बुक में सिर्फ इतना दिया है अभी के लिए कि भाई न्यूक्लियोटाइड्स आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, एक नया वर्ड आया डिक्शनरी के अंदर, हेट्रोसाइक्लिक इसलिए, हेट्रो मतलब डिफरेंट, साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो सिंगल टाइप का नहीं है, 2 टाइप का है। 2 टाइप के साइक्लिक स्ट्रक्चर है नाइट्रोजन बेस के, या तो वो डबल साइकिल्ड है या सिंगल साइकिल्ड है, इसलिए यहां पे रखा है हेट्रोसाइक्लिक, right? So they are heterocyclic compound. Okay, there are 2 types of nucleic acid, one is DNA, one is RNA। एक जो मॉलिक्यूल है उसका नाम है डीएनए, एक जो मॉलिक्यूल है उसका नाम है आरएनए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। मैंने आपको पूरा डिटेल्ड स्टोरी बताया व्हाट इज आरएनए और कैसे आरएनए में से डीएनए बना, राइट? पूरी डिटेल स्टोरी हमने डिस्कशन में ली है। ओके, दैट्स वेयर वी आर एंडिंग द डिस्कशन अबाउट माइक्रोमोलिक्यूल। माइक्रोमोलिक्यूल का डिस्कशन यहां पे खत्म होता है। वी आर नाउ ऑन पेज नंबर 57, पेज नंबर 57 ऑफ योर बुक। अब यहां पे जो टॉपिक पहला दिया गया है 9.2, इट इज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इसको मैं स्किप कर रहा हूं अभी के लिए।
अभी के लिए टेम्पररी में स्किप करके 9.3 में आ गया हूं, बायो मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर। स्ट्रेट वे आई एम जंपिंग टू माइक्रो में से मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर। Our recent topic of discussion is biomacromolecules. Okay, when we have started discussing biomicromolecule, तब इसकी definition को हमने we have discussed. The molecule usually with or with less than 1000 Dalton of the molecular weight, they can be considered to be as biomicromolecule. ओके हमारी बॉडी के अंदर जो भी बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स है, राइट, उसका जो मोलिकुलर वेट है दैट इज मैक्सिमम अप टू 800 डाल्टन, मैक्सिमम अप टू 800 डाल्टन। सेम वे अब मैं बात करूं जब 1000 डाल्टन से ऊपर के मोलिक्यूल्स की, 1000 डाल्टन से ऊपर के मोलिक्यूल्स की, तो उसको मैं कंसीडर करता हूं या तो उसको मैं बोलता हूं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, राइट। वन स्टडी वी हैड अर्लियर इनटू द डिस्कशन के आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनते हैं। अब इनऑर्गेनिक में क्या होगा? एक होगा वाटर H2O, एक होगा मिनरल्स, आइदर सॉल्ट्स और आयोन्स, जो भी होंगे दैट कुड बी कंसिडर्ड इनटू द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और एक होगा गैसेस, गैसेस दैट इज ऑक्सीजन, गैसेस दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा। सो whensoever we are thinking about how many types of inorganic material we do have in our system, तो this is the list। एक होगा पानी, वाटर, एक होगा मिनरल्स जितने भी है, और एक होगा गैसेस दैट इज रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एटसेट्रा, राइट। सो दिस आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इसका कॉम्बिनेशन होता है, इसी का कॉम्बिनेशन होता है और बनते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को हमने यूजुअली दो फॉर्मेट में डिवाइड किया था 3 में। अभी मैं आपको 2 फॉर्मेट में रिवाइज करवा रहा हूं। एक को मैंने बोला था मोनोमर्स और एक को मैंने बोला था पॉलीमर्स, राइट। एक को बोला था मोनोमर्स, एक को बोला था पॉलीमर्स। मोनोमर्स में पहला जो हमने उस टाइम पे देखा था, मैंने जो आपको समझाया था, दैट वाज शुगर और मोनोसैकेराइड्स। Second are lipid. Third are amino acid. And fourth used to be nucleotides. Right. अब उसी के अगर मैं पॉलीमर की बात करूं तो शुगर का पॉलीमर उसको बोलेंगे हम पॉलीसैकेराइड या तो कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट या तो पॉलीसैकेराइड। लिपिड इज नॉट पॉलीमर, सो लिपिड का लिपिड रहेगा। मैं लिख रहा हूं नॉट पॉलीमर, सो इट इज नॉट पॉलीमर, इसलिए मैं उसको हाईलाइट करके यहां पे अलग कर रहा हूं। इट इज नॉट अ पॉलीमर। ओके, एमिनो एसिड का पॉलीमर है सिंपली प्रोटीन।
एमिनो एसिड का पॉलीमर है प्रोटीन। प्रोटीन का केमिकल नाम है पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन का केमिकल नाम है पॉलीपेप्टाइड, राइट। न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर को मैं बोलूंगा न्यूक्लिक एसिड। और उसका केमिकल नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। Polynucleotides. ये ऑलरेडी वी हैव डिस्कस 2-3 टाइम्स, अगेन आई एम रिपीटिंग। सो अभी हम जो बात कर रहे हैं इसको हम कंसिडर करेंगे इस चीज को पूरी मैक्रोमोलिक्यूल्स में कंसिडर करेंगे। 4 चीज आएगी मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर। एक आएंगे हमारे पॉलीसेकेराइड्स, एक आएंगे हमारे लिपिड्स। दो वो पॉलीमर नहीं है बट मैक्रोमोलिक्यूल तो है ही, राइट। 3 आएंगे प्रोटीन और 4 आएंगे न्यूक्लिक एसिड। ये चारों को हम बोलेंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स। बट एज आई सेड, लिपिड पॉलीमर नहीं है ना, इसलिए उसको ट्रू सेंस में हम मैक्रोमोलिक्यूल बोल नहीं सकते हैं। वो साथ रहता है मैक्रोमोलिक्यूल के ही। इट इज फाउंड विद इन मैक्रोमोलिक्यूल, बट एक्चुअल में वो मैक्रोमोलिक्यूल है नहीं, राइट। उसका स्पेसिफिकेशन है अपने पास कि क्यों उसको मैं कंसीडर नहीं करता हूं, फिर भी वो मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर क्यों है वो मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं अभी थोड़ी देर के अंदर। फाइन। सो दैट्स व्हाट द बेसिक स्टोरी व्हाट वी आर सपोज्ड टू नरेट। हम इस स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे अभी, राइट। So we have these monomer जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। We have already talked about amino acids. We already had talk about the lipids. We already had a discussion about sugar and nucleotide respectively. इस सब के बारे में हमने परफेक्टली बात करने के बाद अभी हम आ रहे हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स की तरफ। So let us discuss the macromolecules now. They are biomolecules which have molecular weight greater than 10,000 here। हमारे अंदर जो है वो 10,000 के ऊपर है, बट टेक्निकल डेफिनेशन के अंदर 1000 डाल्टन के ऊपर है, उसको हम बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। So macromolecules are the substances, organic substances which have more than 1000 Dalton atomic mass, right? 1000 Dalton atomic mass. Okay. Main constituent of macromolecules are 3. First one is protein, second one is polysaccharide, and third one is nucleic acid. Protein दूसरा नाम है पॉलीपेप्टाइड। पॉलीसेकेराइड ये केमिकल नाम है, नॉर्मल नेम है उसका कार्बोहाइड्रेट। और तीसरा है न्यूक्लिक एसिड जिसका केमिकल नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, राइट। तो ये 3 चीज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड, ये 3 चीज को कंसीडर किया जाएगा मैक्रोमोलिक्यूल के हेडिंग के अंदर। ओके। अब ये 3 चीज जो हमारी बॉडी के अंदर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी प्रोटीन है, जो भी पॉलीसेकेराइड्स है, जो भी न्यूक्लिक एसिड्स है, हमारे बॉडी के अंदर है, प्लांट की बॉडी के अंदर है, फंगस की बॉडी के अंदर है, और इवन बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर है, सेल्स के अंदर। अगर उसका हम मॉलिक्यूलर वेट निकालें तो इट इज ऑलवेज मोर देन 10,000 डाल्टन, एज आई सेड अर्लियर। तो वो इस डेफिनेशन के अंदर फिट होता है। ग्रेटर देन 1000 है, 10,000 है। सो दोज मॉलिक्यूल आर, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। ओके। अब ये हमने जब ये प्रोसेस को इनिशिएट किया था, व्हेन वी हैव स्टार्टेड डिस्कसिंग दिस चैप्टर, सबसे पहले हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था। हमने टिश्यू को लिया था, उसके अंदर एक माइल्ड एसिड डाला था, राइट। और माइल्ड एसिड के अंदर उसको डाल के पेस्टल एंड मोर्टार को यूज करके हमने उसकी एक स्लरी बनाई थी, पेस्ट बनाई थी। वो पेस्ट को हमने
ऐसे निचोड़ के जो एसिड है वो उसको अलग किया था, ऊपर जो बचा था रिटर्नटेंट, तो रिटर्नटेंट जो था लेफ्ट ओवर जो बचा था वो, एंड नीचे जो बचा था वो एसिड। तो उसके हिसाब से हमने 2 फ्रेगमेंट स्टडी किए थे, 2 फ्रेगमेंट। एक फ्रेगमेंट तो को हमने बोला था एसिड सोल्यूबल फ्रेगमेंट और एक को बोला था एसिड इनसोल्यूबल फ्रेगमेंट, राइट। तो एसिड सोल्यूबल के अंदर जो होगा वो यूजुअली कौन होगा पता है? ऑल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड ऑल माइक्रोमोलिक्यूल्स, ये सभी किसमें होंगे? एसिड सोल्यूबल, मींस एसिड के अंदर होंगे, लिक्विड के अंदर होंगे, राइट। और अभी ऊपर कौन बचा है? रिटर्नटेंट जो बचा है, राइट, लेफ्ट ओवर जो बचा है, निचोड़ने के बाद जो बचा है, उसके अंदर ये मैक्रोमोलिक्यूल होंगे, ये तीनों के तीनों, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड एंड न्यूक्लिक एसिड, राइट। बट उसके साथ लिपिड भी है, वो उसका पल्लू छोड़ता ही नहीं है लिपिड। उसका एक रीजन है, वो रीजन अभी आएगा नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर, राइट। सो एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन, उसके अंदर मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन कहते हैं उसको, बिकॉज उसके अंदर ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं यूजुअली। इंक्लूड्स ऑल द मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल। जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हमारा स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो, प्लस अगर वो घूमते फिरते हैं हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर तो भी आएंगे, सभी एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन के फ्रैक्शन का पार्ट है वो। तो एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन जो है उसके अंदर से हमको ये मिल रहे हैं बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, राइट। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं हम, और वो जो है यस लिपिड वाली बात। सो यहाँ पे आपको जो समझाया गया है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, and if you remember once again the structure of plasma membrane which is given into chapter number 8 of your standard 11 content, major constituent of your plasma membrane is phospholipid and cholesterol, 2 types of lipids. I repeat, phospholipid and cholesterol, they are forming living membranes. लिविंग मेम्ब्रेन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लिपिड के पास, राइट। तो से फॉर एग्जांपल ये एक फोस्फोलिपिड है लेसिथिन, ये दूसरा फोस्फोलिपिड है लेसिथिन, ये तीसरा फोस्फोलिपिड है लेसिथिन, ये एक फोस्फोलिपिड है, ये उल्टा है उसका, और उसकी अरेंजमेंट दिस वे होती है, राइट। तो ये एक मॉलिक्यूल ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, या ये दूसरा मॉलिक्यूल ये तीसरे मॉलिक्यूल के साथ एक स्ट्रॉन्ग एटॉमिक अटैचमेंट से जुड़ा है। उसके पास इंट्रामोलिक्यूलर एट्रैक्टिव फोर्स है। आई रिपीट, उसके पास इंट्रामोलिक्यूलर एट्रैक्टिव फोर्स है। ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। अटैचमेंट उसका एट्रैक्शन है, एट्रैक्शन। जैसे दो आप मैग्नेट को बाजू में रखो तो दोनों मैग्नेट एक दूसरे के साथ चिपकेंगे ही, आपको वो फोर्स करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक ही हो जाएंगे, करेक्ट और नॉट। तो लिपिड का ऐसा ही है, 2 लिपिड मॉलिक्यूल को आप जब बाजू में रखते हो तो ऑटोमेटिक चिपक ही जाते। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देने की भी जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको केमिकल बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते हैं। थम्स अप। ओके, पॉइंट नंबर 2, अगर देर इज नो केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड बन ही नहीं रहा है, उसको हम पॉलीमराइजेशन नहीं कह सकते। अगर पॉलीमराइजेशन है तो वो केमिकल बॉन्ड से ही बनता है, और यहां पे केमिकल बॉन्ड की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसके पास खुद का एट्रैक्टिव फोर्स है। दैट इज व्हाई लिपिड्स डू नॉट फॉर्म पॉलीमर। ये उसका
साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन समझा रहा हूं मैं आपको। उसके पास उसका खुद का मोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स है, उसको केमिकल बॉन्ड की जरूरत नहीं है, एंड दैट इज व्हाई दे डू नॉट हैव केमिकल बॉन्ड एंड दे डू नॉट फॉर्म पॉलीमर, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू में मैं जा रहा हूं। अभी यही सेल्स के जो टिश्यू है, टिश्यू को मैंने ग्राइंड किया, जोर से उसको धो डाला, दबा दब धोया। जैसे ही मैं उसके ऊपर प्रेशर कर रहा हूं, जोर से मैं उसको मार रहा हूं, वो प्रेशर किसके ऊपर आएगा? उसके लेयर, उसके या जो ये मेम्ब्रेन है, उसका जो बाउंड्री है, उसके ऊपर प्रेशर है। तो प्रेशर से उसका जो मोलिक्यूलर वेट का, उसका जो मोलिक्यूलर का अट्रैक्शन है, उससे ज्यादा फोर्स तो मैं दस्ते से दे रहा हूं, दबा दब, तो वो टूट जाता है। इट इज गेटिंग ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। बट से फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहां पे बैठे और बाढ़ आई, पानी की बाढ़ आई है ना, तो हाथ में जो आएगा उसको पकड़ लेंगे ना, हम हाथ में जो आएगा उसको पकड़ लेंगे। बाजू में कोई अपना दोस्त जो भी बैठा है उसको पकड़ लेंगे, बेंच हाथ में आएगी तो बेंच पकड़ लेंगे, कपड़ा हाथ में आएगा तो कपड़ा पकड़ लेंगे, है ना। किसी की जो आजू बाजू में जो भी चीज है हम उसको पकड़ लेंगे, क्योंकि वी डू नॉट वांट टू गो विद द फ्लो ऑफ द वाटर। हमें उसके साथ नहीं जाना है, उसको पकड़ के रखना है, हमें यहीं पे रहना है जहां पे हम है। एम आई वेरी करेक्ट? एम आई वेरी करेक्ट? तो जैसे ही वो हम उसको तोड़ेंगे, उसकी टेंडेंसी ऐसी है कि एक लिपिड दूसरे लिपिड को छोड़ेगा नहीं, है ना। तो वो जब उसको तोड़ते हैं ना, तो वो जो पूरा ऐसे बाउंड्री थी ना, वो छोटे छोटे गोल गोल ऐसे वैक्यूल बन जाएगी, लिपिड्स के छोटे छोटे वैक्यूल बन जाएंगे। बट लिपिड के दाने छुट्टे नहीं हो जाएंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, लिपिड के दाने जो है ना वो छुट्टे नहीं हो जाएंगे, वेराई नहीं जाएंगे, गुजलिश है ना, वेराई नहीं जाएंगे, छुट्टे छुट्टे नहीं हो जाएंगे। वो हिंदी वाली को समझ में आ गया ना? ओ थम्स अप, है ना। सो दे विल नॉट बी कंप्लीटली गेट सेपरेटेड, नो। थोड़े थोड़े लिपिड्स के जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के साथ अटैच ही रहेंगे। दे डोंट वांट टू गेट सेपरेटेड, काइंड ऑफ दैट अट्रैक्शन दे हैव। अंडरस्टूड? सो वो लिपिड सोल्यूबल पोर्शन में नहीं जाएंगे, लिपिड के साथ वो नहीं एसिड के साथ वो नहीं जाएंगे, क्योंकि एसिड भी बेसिकली वाटर में ही सोल्यूबल होके बना है। जो वो हम एसिड डालते हैं, माइल्ड एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है, उसका मेन बेस है वाटर, और ये वाटर में तो डिसॉल्व होते नहीं। इट मींस ये वो एसिड सोल्यूबल पार्ट में नहीं जाएंगे, रह जाएंगे कहां पे? ऊपर ही रह जाएंगे। तो भले ही वो पॉलीमर नहीं है, राइट, भले ही लिपिड पॉलीमर नहीं है, भले ही वो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, फिर भी आपको वो एसिड इनसोल्यूबल पुल के साथ ऊपर ही मैक्रोमोलिक्यूल के साथ ही देखने को मिलेंगे। अंडरस्टूड? एंड दैट्स व्हाट दे हैव रिटन हियर। यहां पे जो लिखा है वो यही लिखा है। केयरफुली अंडरस्टैंड एवरी लाइन हियर। लिपिड इज नॉट स्ट्रिक्टली अ मैक्रोमोलिक्यूल। वो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, कुछ भी कर लो, नहीं है, क्योंकि उसका मोलिकुलर वेट मैक्सिमम 800 डाल्टन है, उससे ज्यादा नहीं है, राइट। इट्स मोलिकुलर वेट डज नॉट एक्सीड टू 800 डाल्टन, तो इसलिए वो कभी भी मैक्रोमोलिक्यूल नहीं हो सकता है। बट इट इज कमिंग अंडर एसिड इनसोल्यूबल पार्ट। एसिड इनसोल्यूबल में मिल रहा है आपको। एसिड इनसोल्यूबल पार्ट में क्या मिलना चाहिए? मैक्रोमोलिक्यूल, बट फिर भी आपको ये मिल रहा है। तो उसका रीजन यहां पे एक्सप्लेन किया है। बिकॉज मेनी लिपिड्स आर अरेंज्ड इनटू स्ट्रक्चर्स लाइक सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो है। सो व्हेन द टिश्यू इज ग्राइंडेड, जब आपने उसको ग्राइंड किया पेस्टल मोर्टार के साथ, मेम्ब्रेन्स आर ब्रोकन एंड फॉर्म
वाटर इनसोल्यूबल वेसिकल, ये है उसका मेन एडवांटेज। वाटर इनसोल्यूबल वेसिकल बन जाएगी तो एसिड में वो जाएगी ही नहीं, वाटर इनसोल्यूबल है तो कैसे जाएगी? अंडरस्टूड? दे कैन नॉट बी फिल्टर्ड ड्यूरिंग एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन, तो जब एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन जाएगा नीचे की ओर, उसके साथ ये नहीं जाएंगे। So that is why they are found to be associated with macromolecules always. Ready? So that's important point you should consider. चलो लिपिड को रखते हैं हम साइड में और हम आगे बढ़ते हैं कि मेजर मैक्रोमोलिक्यूल्स जो सेल्स के अंदर होते हैं, सेल्स के अंदर पाए जाने वाले मेजर मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन से हैं, उसका परसेंटेज कितना है कंपैरेटिवली। सो एवरेज कंपोजिशन ऑफ द सेल, जहां पे वाटर वुड बी शेयरिंग 70 to 90% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सेल। एनिमल सेल है तो मिनिमम 70%, राइट, एंड प्लांट सेल है तो मे बी अप टू 90% वाटर इज ऑक्यूपाइंग अ टोटल वॉल्यूम ऑफ ए सेल। ओके, नाउ कम्स द फर्स्ट हीरो, दैट इज प्रोटीन। तो प्रोटीन का प्रोपोर्शन जो होता है हमारे बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर 10 to 15%, 10 to 15% of your cellular constituent is protein. Second is carbohydrates. Carbohydrates, total constituent of your cell, 3% carbohydrate, 3% carbohydrate. Last, third, nucleic acids. Nucleic acids are found to be 5 to 7% of your total constituent of cell. 5 to 7%, right? Lipid cannot be considered here because lipid is not macromolecules. Inorganic substance like ions occupies total 1% of the total volume of your cell, 1%. So main hero कौन છે? Protein. Major જે constituent છે, they are shared by protein. I many times said you कि protein is your main hero because each and every part of your cell, each and every part of your body is composed of the protein, So protein is everywhere. Protein is constituent of all the substance, all the cell membrane, everything whatsoever you find inside or outside your cell, your body, right? It is mainly composed of protein. So that is why they also have given first chance to protein. બધાયમાં સૌથી પહેલા પ્રોટીનને એક્સપ્લેન કર્યો છે, રાઈટ? સૌથી પહેલા કોને એક્સપ્લેન કર્યો છે? પ્રોટીનને। सबसे पहले प्रोटीन को एक्सप्लेन किया है, हिंदी में बात की है, हिंदी में, राइट? ओके, पेज नंबर 58 खत्म, पेज नंबर 58 खत्म, पेज नंबर 59 टेबल ऊपरનું જે છે એ ખતમ हो गयो। नाउ कम्स द प्रोटीन। We are on page number 59. We are on page number 59 of your book. मर गई? Sorry, मिल गया? Okay. कहीं अब आएगा हो ना? कहीं, right? Okay. So first macromolecule, what they have given here is the protein. The proteins. Okay. Proteins किसको बोलेंगे? What is said to be or defined as a protein? Proteins are heteropolymer of amino acid. Amino acid is monomer. Amino acid is monomer and proteins are polymer. Proteins are polymer. यहाँ पे एक वर्ड जानबूझ के इसको कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए रखा है, heteropolymer. Hetero मतलब अलग अलग, हीटरो मतलब अलग अलग। जहां पे ऐसा पॉलीमर है, ये ऐसा पॉलीमर है कि इसके अंदर सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल नहीं है,
डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल है। अब वो डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल कौन है भाई? कौन है? किसको पता है? किसको पता है डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल कौन है? तो प्रोटीन बनता किससे है? अमाइनो एसिड से। प्रोटीन बनता किससे है? अमाइनो एसिड से है। अमाइनो एसिड सिंगल टाइप का थोड़े ही ना आपने पढ़ा है। अमीनो एसिड कितने हैं? अमीनो एसिड है 20। अमाइनो एसिड्स कितने हैं? अमाइनो एसिड्स आपने 20 पढ़े, 20 अमाइनो एसिड्स है। तो सिंगल टाइप अमाइनो एसिड होगा ना, सिंगल टाइप ऑफ अमाइनो एसिड होगा तो उसको होमोपॉलीमर बोलते हैं। ऐसा नहीं है, यू हैव 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, इसलिए उसको बोला जाता है हेटेरोपॉलीमर, राइट। सो हेटेरोपॉलीमर उसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये है अमाइनो एसिड जो 20 टाइप्स के हैं और उससे ये पॉलीमर बनता है, इसीलिए उसको मैं बोल रहा हूं हेटेरोपॉलीमर, राइट। ओके, नेक्स्ट मैं उसको दूसरा एक नाम देता हूं और वो नाम है पॉलीपेप्टाइड। वो नाम है पॉलीपेप्टाइड। अगेन वो नाम है पॉलीपेप्टाइड। ओह, કંઈક નવા આયા है ने, કંઈક नवा आया पाछा। चलो अब ये पॉलीपेप्टाइड के बारे में हम बात करते हैं थोड़ी, है ना, थोड़ी बात करेंगे, ज्यादा नहीं। ओके, इसके लिए आपको यहाँ पे इस डायग्राम के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, राइट। ये डायग्राम के अंदर ये फर्स्ट जो है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है उसको मैं काली बॉल पेन से करता हूं, इसलिए आपको पता चले कि ये है अमाइनो एसिड और ये भी है अमाइनो एसिड। तो ये है अमाइनो एसिड नंबर 1 और ये है अमाइनो एसिड नंबर 2। ये दो अमाइनो एसिड हमारे पास है जिसको मुझे अगर जोड़ना है, उसको अगर मैंने जोड़ना है पॉलीमर बनाने के लिए, पॉलीमर बनाने के लिए मुझे केमिकल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, केमिकल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो केमिकल बॉन्ड बनेगा किसके? इन दोनों के बीच में, राइट। तो यहां पे जो मुझे दिख रहा है एक अमाइनो एसिड का ये है NH2 ग्रुप, अमोनिया ग्रुप, NH2 ग्रुप, और सामने का जो दूसरा अमाइनो एसिड ग्रुप है उसके यहां पे जो ग्रुप दिख रहा है मुझे वो है COOH ग्रुप, दैट इज हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इन दोनों के बीच में केमिकल बॉन्ड बनना है, इन दोनों के बीच में केमिकल बॉन्ड बनना है, राइट। तो यहां से जो अमोनिया है ना, अमोनिया में से एक हाइड्रोजन निकलेगा, निकल जाएगा, गायब हो जाएगा, ये इसको हम निकाल देते हैं यहाँ पे H, राइट। और यहाँ पे COOH जो है उसमें से OH निकल जाएगा, ये OH है ना वो निकल, उसको काट देते हैं हम OH। तो ये है H का दूसरा H2 અને એ O है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल बन के वो यहां से निकल जाएगा, सॉरी, it will be removed here, right, it will be removed from here। dehydration reaction होगा, dehydration reaction होगा, dehydration reaction होगा। तो बॉन्ड किसके बीच में बनेगा भाई? ये नाइट्रोजन के बीच में और ये कार्बन के बीच में बनेगा, नाइट्रोजन के बीच में और कार्बन के बीच में बनेगा। और ये जो बॉन्ड बनेगा ना केमिकल बॉन्ड, उसको मैं बोलूंगा पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। यहां पे दिख रहा है आपको, अगर दिख रहा है तो CONH बॉन्ड, CONH बॉन्ड होगा। CO ये रहा, ये गुडाना यहाँ पे CO, NH ये गुडाना NH। सो CONH के बीच में ये बॉन्ड बनता है। ये जो बॉन्ड है उसको मैं बोलूंगा पेप्टाइड बॉन्ड, राइट। ओके, तो दो अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड नंबर 1 है भाई, पेन बदलाइए, ये अमाइनो एसिड नंबर 1 है और ये अमाइनो एसिड नंबर 2 है। इनके बीच में ये बना फर्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड। अब मुझे तीसरे नंबर का अगर अमाइनो एसिड इसके साथ ज्वाइन करना है तो मुझे दूसरा बॉन्ड बनाना पड़ेगा, ये सेकंड नंबर का बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड, राइट। अगर मुझे फोर्थ अमाइनो एसिड को यहाँ पे डालना है तो मुझे थर्ड नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं? मेनी पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड दे यार। अब समझ में आ गया पॉलीपेप्टाइड कहां से आया? अंडरस्टूड। सो मैं इसको भूस दूं क्या, इरेज कर दूं?
Okay. Fine. So they are polypeptide, that is linear chain of amino acid which are linked by peptide bond. जो मैंने अभी समझाया पूरा, right? Peptide bond is formed when COOH group of one amino acid react with the ammonia group NH4 group of the next amino acid by releasing a molecule of water, that is dehydration reaction, right? वो पूरा हमने समझ लिया है. Okay. जब हम बात करते हैं ये होता कहां पे है, पॉइंट टू बी नोटेड वेरी सीरियसली, ये कहां पे होगा ये सब, राइट? ये होगा कहां पे? तो एक है मेरे पास डीएनए, पॉइंट टू बी नोटेड, ये न्यूक्लियस के अंदर है. न्यूक्लियस के अंदर वो बनाएगा आरएनए, न्यूक्लियस के अंदर बनेगा आरएनए. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन नहीं बनने वाला है. प्रोटीन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल के अंदर राइबोसोम की है. राइबोसोम, इफ यू रिमेंबर चैप्टर नंबर 8, राइबोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस. राइबोसोम कहां पे है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. याद आ गया? तो इसको मुझे न्यूक्लियस में से निकाल के साइटोप्लाज्म में डालना पड़ेगा. साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा ये. कौन? आरएनए. कौन? आरएनए. कहां पे आएगा? ऑन राइबोसोम, राइट? राइबोसोम के ऊपर आएगा. राइबोसोम उसको प्रोटीन में कन्वर्ट करेगा. प्रोटीन दैट इज पॉलीपेप्टाइड. ये तो पॉलीपेप्टाइड बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? राइबोसोम्स की. किसकी है? राइबोसोम्स की. किसकी है? राइबोसोम्स की है. तो से फॉर एग्जांपल देयर इज आरएनए, ये सी आरएनए की एक, ये आरएनए. अब ये जो मैं सेगमेंट कर रहा हूं ये कोड वर्ड्स है. कोड वर्ड्स है. ये कोड वर्ड नंबर 1 है, ये कोड वर्ड नंबर 2 है, ये कोड नंबर 3 है, ये कोड नंबर 4 है, ये कोड नंबर 5 है, कोड नंबर 6 है, कोड नंबर 8 है, कोड नंबर 9 है. से फॉर एग्जांपल, राइट? ये फर्स्ट कोड के हिसाब से ये पहला अमाइनो एसिड आएगा. यहां पे कहां पे होगा ये काम? राइबोसोम के ऊपर. कोड नंबर 2 को रीड करके वो सेकंड नंबर के अमाइनो एसिड को यहां पे लाएगा और इसके बीच में बनेंगे पेप्टाइड बॉन्ड, राइट? अब थर्ड नंबर पे आएगा इस कोड के ऊपर थर्ड नंबर का अमाइनो एसिड. इन दोनों के बीच में बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड. फोर्थ नंबर में कोड जो है ये आरएनए है. हाँ, ये आरएनए है और ये अमाइनो एसिड अरेंज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कोड वर्ड. तो ये कोड के हिसाब से फोर्थ नंबर का अमाइनो एसिड ज्वाइंट होगा, ई कोड के हिसाब से फिफ्थ, ये कोड के हिसाब से सिक्स, ये कोड के हिसाब से सेवेंथ, राइट? ऐसे करके टोटल से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 8 अमाइनो एसिड की एक चेन बनाई, 8 अमाइनो एसिड की चेन. तो ये हो गया आपका पॉलीपेप्टाइड. यही तो है पॉलीपेप्टाइड, यही तो है प्रोटीन जो आपने बनाया है अभी. तो प्रोटीन बनता कहां पे है? माय क्वेश्चन, वेयर इज द प्रोटीन गेट्स सिंथेसाइज्ड? Where is the protein gets synthesized? Your answer is on the surface of ribosomes. On the surface of ribosomes. Ribosomes कहाँ पे है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर. कहाँ पे है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर. राइबोसोम्स सिर्फ यहीं पे नहीं होते. There are 3 types of ribosome. There are 3 types of ribosome. Few ribosomes are free floating in the cytoplasm. Few are on the surface of the organelle, that is endoplasmic reticulum के surface के ऊपर, and few ribosomes are found inside the organelle, like 70S ribosomes which are found inside chloroplast and inside mitochondria. तो उसके organelle के अंदर भी होते हैं, ऑर्गेनल के सरफेस के ऊपर भी हो सकते हैं एंड साइटोप्लाज्म के अंदर भी हो सकते हैं. देयर आर 3 लोकेशंस इनसाइड योर सेल वेयर यू कैन फाइंड राइबोसोम्स.
राइट। राइबोसोम 3 जगह पे हो सकते हैं। एंड राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये पहली थिंग जो आपको क्लियर करनी है। तो मैंने जो अभी चेन समझाई है प्रोटीन की, फ्रेशली जनरेटेड प्रोटीन, फ्रेशली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन, वही यहां पे दी गई है। यहां पे जो दिखाई है वही दिखाई गई है। यह है चेन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड नंबर 1 2 3 4 5 11 है यहाँ पे। ऐसी एक लंबी चेन बनी, लंबी चेन। वो लंबी चेन जो होगी, जो राइबोसोम के ऊपर बनी है, पॉइंट टू बी नोटेड। आपको केयरफुली इस पॉइंट को कंसिडर करना है, राइट। अभी जो मैंने बोला कि राइबोसोम के ऊपर जो प्रोटीन की चेन बनी है फ्रेशली, उसको मुझे बोलना पड़ेगा प्राइमरी प्रोटीन। उसको मुझे बोलना पड़ेगा प्राइमरी प्रोटीन। क्या बोलूंगा मैं उसको? प्राइमरी प्रोटीन, राइट। ओके, माइंड इट वेरी वेल, माइंड इट वेरी वेल। याद रखना है, प्राइमरी प्रोटीन्स आर नेवर एक्टिव। कोई काम नहीं कर सकते हैं प्राइमरी प्रोटीन, एक्टिव नहीं है। प्राइमरी प्रोटीन एक्टिव नहीं है। डू रिमेंबर दिस, राइट। अगर उसको एक्टिव करना है तो उसको भेजना पड़ेगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास। याद आ गई प्रोसेस? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, वो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वेसिकल बन के निकल के गोल्गी कॉम्प्लेक्स की सिस सरफेस में जाते हैं। क्यों जाते हैं? उसको वहां मजा आता है? नहीं, बिकॉज वो इनएक्टिव है। उसको एक्टिव बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गोल्गी कॉम्प्लेक्स की है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स उसके ऊपर प्रोसेस करता है अगेन, और उसको इनएक्टिव में से एक्टिव बनाता है। अगर उसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा फेरफार करेगा, थोड़ा सा, इत्तू, तो वो बन जाएगा सेकेंडरी प्रोटीन। क्या बनेगा? सेकेंडरी प्रोटीन। अगर इत्तू नहीं, इत्तू से ज्यादा, इत्तू फेरफार करेगा तो वो थर्ड टर्शरी प्रोटीन हो जाएगा। अगर इतना सारा फेरफार करेगा ना, तो वो बन जाएगा क्वाटरनरी प्रोटीन। तो सेकेंडरी प्रोटीन इज ऑल्सो एक्टिव, टर्शरी प्रोटीन इज ऑल्सो एक्टिव, क्वाटरनरी प्रोटीन इज ऑल्सो एक्टिव। ये 3 अलग अलग एक्टिव प्रोटीन, बट बनेंगे किस में से? प्राइमरी में से। बनाएगा कौन? गोल्गी कॉम्प्लेक्स, राइट। ये हियरार्की आपको याद रखनी है कि प्राइमरी प्रोटीन एक्टिव नहीं है, उसको एक्टिव बनाने के लिए उसको प्रोसेस में से पास करना है, और बाकी का हम नेक्स्ट डिस्कशन में देखेंगे। आश 2 हाथ जोड़े કેટલાય ने, भूंडे नहीं लगते हैं। चलो बाय, हैव ए नाइस टाइम। फ्राइडे को मिलेंगे। टेक केयर।